Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the planning, the integration of ICT in the curriculum. How we plan the integration of ICT in our curriculum in school. Okay. Structure of the presentation, curriculum planning. We discuss about the curriculum planning, how we plan ICT integration in the curriculum, organizational planning, classroom planning, assessment planning. Objective. After this presentation, the audience will appreciate the need to plan for ICT integration. Will be able to lead or participate on a planning committee on ICT integration. Will effectively and efficiently implement ICT integration program. Okay, these all objectives you have to gain after the presentation. First of all, we discuss about the planning. Curriculum planning. What is curriculum? Curriculum is a broad term. Okay, it's in wording, this in the meaning of curriculum, we have to find that curriculum means that a way, a path. Okay, in education, the curriculum means that as a whole, the core curriculum and the content and the syllabus and the course outline which consist in the curriculum. Okay, curriculum जो होता है निसाब, जिसमें एक जो फील्ड है, एक सब्जेक्ट का तमाम जो उसके जो टॉपिक्स हैं, उसका जो पूरा मवाद है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में जो प्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट क्या पढ़ाना है, ठीक है, मुकम्मल निसाब जो कहलाता है, ठीक है, उसको हमने किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आईसीटी के अंदर, ठीक है, आईसीटी को करिकुलम के अंदर शामिल करना है। जब तक हम अपने करिकुलम को प्लान नहीं करेंगे कि आईसीटी किस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, करिकुलम एक टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाता है, उस करिकुलम के मुताबिक पढ़ाता है, ठीक है। अगर एक स्कूल मैनेजमेंट ने किसी भी मिसाल मैथ्स का करिकुलम है, उसके मुताबिक टीचर को ये गाइडेंस दी कि आपने इस मैथ्स करिकुलम में, मैथ्स के सिलेबस में, ठीक है, आपने एज ए टीचर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ये ट्रेनिंग आप एज ए स्कूल की जिम्मेदारी की टीचर को दें, और करिकुलम को भी इस तरीके से डिज़ाइन करें, करिकुलम को भी इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो टीचर जो है वो उस टेक्नोलॉजी को उस करिकुलम के अंदर यूज़ करने की एबिलिटी रखता हो। करिकुलम प्लानिंग फॉर आईसीटी एट स्कूल लेवल मस्ट बी curriculum planning for ICT at school level must be concerned with ensuring the successful integration of ICT to support teaching and learning within the framework of curriculum. Learning through ICT, learning with ICT, and learning about ICT. This is the cycle, okay, which process the teaching learning in a systematic way by the integration of ICT. Okay, integrating ICT into curriculum. Now we discuss about the how we how we use technology in our curriculum to deliver the content. Okay, when a teacher deliver a content in a classroom by using the appropriate teaching method, then teacher must be used a technology in a teaching method. Okay,
4 promotes active engagement of learners, promotes learners independence, promote collaboration among learners, support learning skills, higher order thinking, problem solving. Okay. Technology support the higher thinking order. We discussed in previous class about the Bloom's taxonomy, in which we discussed about the higher order thinking, analysis, synthesis, evaluation, creating. Okay, these abilities will develop in the uh, learners, and learners use these ability for further learning. Okay, integrating ICT into curriculum, learner centered approach to teaching and learning, स्टूडेंट लाइब्रेरी। देखें, अगर हम आईसीटी में यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो स्टूडेंट को होता है। स्टूडेंट के लिए ही हम ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं, ये फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट बेहतर अंदाज में अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, आसानियाँ पैदा करें हम स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से, कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो जब हम आईसीटी को इंटीग्रेट करते हैं करिकुलम के अंदर, तो ये हम इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लर्नर सेंटर अप्रोच को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, स्टूडेंट मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, मुख्तलिफ स्पेस पर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी प्रोफेसर्स which uh, they use technology to deliver their lectures, internet facilities, ठीक है, अदर स्टूडेंट्स कोलिब्रेशंस क्लास, इन तमाम कैटेगरीज, इन तमाम स्पेस में एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन अवर करिकुलम। देखें, टेक्नोलॉजी का हमेशा याद रखें कि एक जो टीचर होता है उसको करिकुलम के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है, ना कि करिकुलम को टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से एज अ टूल है, ठीक है, विच प्रोमोट द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। ओके, organizational planning, how plan the ICT integration. Organizational planning is concerned with ensuring the successful and safe use of ICT to support teaching and learning within the curriculum at school level. Is a successful and safe and supporting the teaching and learning within the curriculum at school level. तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग हमने करनी है, वो किस तरह करेंगे हम आईसीटी पॉलिसी, ठीक, को किस तरीके से स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, स्कूल के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिसी हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो आईसीटी को सपोर्ट करें। जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं स्कूल में, खासतौर पर अगर आईसीटी इंटीग्रेशन की पॉलिसी हम बना रहे हैं कि स्कूल में हम इम्प्लीमेंट करनी है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इस टर्म को हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाएँ स्कूल में, तो हमें ये बात, इस बात को मानना पड़ेगा कि हम इस जो पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेडमास्टर एंड टीचर्स दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को क्या करना है, हमने उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐड करना है, उस मीटिंग में ऐड करना है, ठीक है, उस पॉलिसी में ऐड करना है। ओके, अच्छा जनाब, एलिमेंट्स ऑफ
टीचिंग, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी पॉलिसी, आईसीटी पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या क्या है, किस किस एलिमेंट्स में आपने काम करना है कि जो आईसीटी की पॉलिसी को सपोर्ट करें। करिकुलम सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन, द स्कूल मस्ट हैव a plan for the integration of ICT in teaching and learning in the school the as well as of the overall school plan, outline of vision of the role of ICT to inform future developments। जब एक स्कूल में आप आईसीटी को इम्प्लीमेंट करने की पॉलिसी जनरेट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपने ये देखना है कि वो आईसीटी टेक्नोलॉजी हमारे करिकुलम को कितनी किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इन फ्यूचर बिल्डिंग स्टूडेंट्स की किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। ओके, इसके लिए आपने पूरा आपका कंसेप्ट जो है स्कूल का वो आपने टेक्नोलॉजी बेस करना होगा कि आपने ये नहीं कि सिर्फ आप जो क्लासरूम के अंदर ही क्या कर रहे हो, क्लासरूम के अंदर ही सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और जो बाकी जो चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कूल्स के अंदर उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि आपने ओवरऑल स्कूल प्लानिंग को आपने क्या करना है, आईसीटी बेस बनाना है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी पॉलिसीज, नंबर टू आईसीटी नेटवर्क एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। ICT network and equipment, the school must have a list of existing ICT resources that can inform plans for the acquisition of new ones। ठीक है? जब आप पॉलिसी स्कूल में जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन से आईसीटी रिसोर्सेज हैं जो हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, जो स्कूल्स के लिए क्या हो, स्कूल लेवल पर बेनिफिट पहुंचाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। और हम ये एज ए स्कूल आईसीटी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए इस एलिमेंट देखेंगे, हमारा नेटवर्क क्या है, आईसीटी का इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए, जितने हो सके एडवांस इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करें स्कूल्स के अंदर, और उसी हिसाब से हमें टीचर को भी ट्रेन करना होगा। Okay, ICT storage and maintenance. The school must have a plan for procedure plan or how on how they ensure the safe storage of ICT equipment and software and provide for routine maintenance. There must be a budget for maintenance of ICT equipment and technical support if needed. This is more important. देखिए टेक्नोलॉजी को स्कूल में लाना, यूज़ करना, इट इज़ वेरी इजी, बट द storage and the maintenance of the equipments, ठीक है, of ICT it is very important, ठीक है। टेक्नोलॉजी को सेफ रखना, ठीक है, उसको वेल ऑर्गेनाइज रखना, अप टू डेट रखना, ठीक है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना, ठीक है, इन तमाम चीज़ें मेंटेनेंस के लिए आपका आपका बजट होना, फाइनेंशियली बजट, टेक्निकल सपोर्ट होना ये ज़रूरी है। वरना क्या होगा, जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो चीज़ ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, इस तरीके क्या होगा, आपका बजट आउट हो जाएगा। तो लिहाजा आपने इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग लाजमी करनी है कि टीचर्स को ट्रेनिंग हासिल हो कि उसने किस तरह स्टोर करना है, आईसीटी इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना है, ठीक है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। जब बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ बहुत अरसे तक उस चीज़ को हम यूज़ कर सकेंगे। ओके, coordination, ICT coordination. The school must have a recognized teacher or a group of teachers who are responsible for developing ICT capabilities within the school setup and ICT integration in the curriculum. if कोऑर्डिनेशन से काम करना है, आपने एक ग्रुप बनाना है, एक इंचार्ज बनाना है जो टेक्नोलॉजी की चीज़ों को क्या करें, मैं टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स को क्या करें, चेक एंड बैलेंस करें, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें टीचर्स को कि वो आईसीटी के इक्विपमेंट्स को, आईसीटी जो यूज़ करें टीचर्स, ठीक है, उसको पूरे स्कूल में
इम्प्लीमेंट करवा सकें। ओके, ICT कैपेबिलिटीज विद इन द स्कूल सेटअप एंड इंटीग्रेशन इन द करिकुलम। ठीक है, तो आपने ICT कोऑर्डिनेटर आपने एक स्कूल में बनाना है कि जिसकी मदद से उसकी मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि वो टीचर्स को गाइड करेगा, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेगा कि किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में यूज़ करना है, कौन सब्जेक्ट में कौन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। इसके लिए बाकायदा एक कोऑर्डिनेटर आपने रखना है स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, स्कूल सिस्टम के अंदर। ओके, ICT प्रोफेशनल डेवलपमेंट। The integration of ICT in the curriculum has consequent implication of for teachers professional development is very important. टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना लाजमी है। जब टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी वो, तो वो टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया अगर आप क्लासरूम में यूज़ करें, टीचर को पता होना चाहिए ना किस तरह यूज़ करके उस मल्टीमीडिया को किस तरह ऑन करना है, किस तरह से जूम करना है। आप कंप्यूटर तो आपने क्लासरूम में रख दिया, लेकिन आपने कंप्यूटर को टीचर को ये ट्रेन देने कि आपने कंप्यूटर किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, और उस चीज़ के लिए आपने सेविंग मेजर्स रखने हैं आपने। ठीक है, इस चीज़ को किस तरह महफूज रखें उस इक्विपमेंट को, ये भी आपने रखना है। देन टू इनेबल एंड द टीचर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज ICT टूल्स इन द करिकुलम। दिस इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ICT टूल्स इन द करिकुलम। नेक्स्ट, अब आ जाए क्लासरूम प्लानिंग के ऊपर। Adding the role of ICT, it is important to identify when the use of appropriate ICT tool can enhance teaching and learning. Okay, ठीक है, ठीक है। क्लासरूम प्लानिंग हमें ये देखना है कि आप टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है when the use of appropriate ICT tools, कौन से ICT टूल्स हैं जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर रही हो, लर्निंग इन्हेंस कर रही हो, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, आए वो मल्टीमीडिया क्लासरूम में यूज़ करना स्टूडेंट्स के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर ली, ठीक है, या फिर इंटरनेट का यूज़ करना, ठीक है, या कंप्यूटर का यूज़ करना। आपने ये बात आपने ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT with learning skills. Planning the integration of ICT with learning skills. Critical thinking, problem solving, exploring, investigating, collaborative learning, development of confidence. लर्निंग स्किल्स के लिए क्या प्लानिंग करेंगे कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी पावर इम्प्रूव हो, मीन्स वो चीज़ों को परखें, ये समझें, तजिया कर सकें, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें, हैंडल कर सकें, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकें, इन्वेस्टिगेशन एबिलिटीज़ के अंदर आए, एक्सप्लोरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग इसमें इनहेंस होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के दरमियान कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करें। ठीक है, टीचर को चाहिए वो स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करें। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि स्टूडेंट्स ने, जब आप देखा होगा आपने स्टूडेंट कंप्यूटर यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो कितनी मतलब किस तरीके से अपना खुशी का इज़हार करते हैं जब वो ऐसा तो कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियली क्या करते हैं, उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो डेवलपमेंट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स के अंदर, ये एक स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स को डेवलप करती है कॉन्फिडेंट। असेसमेंट प्लानिंग,
ठीक है। असेसमेंट प्लानिंग, लेकिन आईसीटी आप यूज़ कर, लेकिन उसका असेसमेंट किस तरह करेंगे आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आईसीटी यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज असेसमेंट। ओके, रूब्रिक्स बनाने होंगे हमने। असेसमेंट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल बनाना है। द यूज ऑफ आईसीटी असेसमेंट टूल्स, रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग आईसीटी टूल्स, एवल्यूएशन एंड रिव्यू। ओके, देखिए असेसमेंट में से मैंने बताया कि असेसमेंट के दो टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ऑन गोइंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड सबमेटिव असेसमेंट इन द एंड ऑफ सेशन, सेमिस्टर, इन द एंड ऑफ सेमिस्टर एग्जाम जो होता है आपके सेमिस्टर मिड टर्म होते हैं, ये क्या है? सबमेटिव असेसमेंट, जिसमें जजमेंटल आप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, जजमेंट जज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ग्रेड दे रहे होते हैं। ओके, तो ये तमाम चीज़ें आईसीटी को यूज़ करने के आपने उसका असेसमेंट प्लान भी करने के आपने किस तरह असेस करेंगे प्लानिंग। ओके, जैसे आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल आता है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, एमएस वर्ड को किस तरह यूज़ करना है, पावर पॉइंट को, ठीक है। तो आपके पास टूल्स होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए कि उस चीज़ को आप असेस कर सकें। समरी पालन, आईसीटी इंटीग्रेशन at the school level must go through a gradual process of careful planning at the curriculum level, organizational with school level, classroom level, methodologies in assessment and evaluation level. Okay? इन लेवल पे हमने डिस्कस किया कि हमने किस तरीके से आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, कंक्लूजन, इन द लाइट ऑफ above, you will agree with me that the integration of ICT in the curriculum, when planned carefully, will take us higher height in achieving the intent purpose. Of course, when we use technology in our curriculum, then we gain the learning outcomes more. ठीक है, हम अपने आउटकम्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, देखिए टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एक बेहतरीन जो एक उस्ताद होता है वो चाहता है कि हम स्टूडेंट को मौजूदा दौर के वसाइल के मुताबिक, मौजूदा दौर के इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक पढ़ाया जाए। इस तरह का आप देखते हैं आज के जो दौर है वो क्या है? टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट है, विदाउट इंटरनेट आप नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो चीज़ को यूज़ कर सकें ताकि मैक्सिमम अचीवमेंट आप हासिल कर सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, लेट अस get involved wherever we find ourselves to make this a reality through careful planning. केयरफुल प्लानिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तमाम चीज़ों को रियलिटी बेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो खुलासतन ये है कि एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं करिकुलम के अंदर, वो मुकम्मल जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो फुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेस होती है। एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप के को टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो स्टूडेंट्स पर सही ना हो, बल्कि स्टूडेंट्स के ऊपर जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका बहुत मुस्बत असर होता है। कब होगा? जब आप उसकी ट्रेनिंग आप देंगे टीचर्स को। ठीक है, स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जिम्मेदारी है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में स्टूडेंट टीचर्स को आगाह करें, स्टूडेंट्स को आगाह करें, ताकि वो अच्छे अंदाज में आईसीटी को यूज़ करें। अब ये बात भी नोट रखें, 2017 की जो पॉलिसी आई थी, एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2017, उसमें आईसीटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आईसीटी ट्रेनिंग के ऊपर, आईसीटी टीचर्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है।
वो इसीलिए किया गया है ताकि हम स्कूल्स में आईसीटी को यूज़ कर सकें। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।